Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and had a great summer vacation. As you all know, we are starting our revision from today of English text. Okay, let's take a look at syllabus for first periodical. We have total 2 chapters. Unit number 1, the river bank. Unit number 9, the cool crane. In this video, we will be revising our first chapter, the river bank. Does anyone remember the moral of the story? As you all remember, we discussed that the moral of the story is that sometimes you need to take a break from your daily routine and try new things. As you all know, the mole was busy cleaning his house, but he was not happy. When he went outside and explored the riverbank, he met a new friend and had a wonderful time. He learned that there is joy in trying new things and spending time with others. The story also teaches us to appreciate the simple things in life and not to get too caught up in our daily routines. The contents of this chapter are words meaning, question answers, reference to context, word sentences, fill in the blanks, and jumble words. Write the meanings of the following words. Our word number 1 is privilege. Its English meaning is an advantage or right possessed by an individual or group. In Urdu, it means istihqaq. Our second word is swirl. Its English meaning is to move or spin around in a twisting motion. In Urdu, it means ghumana. Our third word is meadow. In English, it means land that is covered with grass. In Urdu, it means घास का मैदान. Our fourth word is bewitched. In English, it means to be enchanted by someone or something. In Urdu, it means seherzada. Our fifth word is grumble. In English, it means to complain or express dissatisfaction in a low murmuring manner. In Urdu, it means barbarana. Now, we have question answers. Question number 1. Which words and phrases in the first paragraph tell us that the mole wanted to be out in the fresh spring air? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से वो वर्ड्स थे, फ्रेजेस थे इन द फर्स्ट पैराग्राफ. यानी अगर हमने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें पता चलता है कि मोल को फ्रेश स्प्रिंग एयर एंजॉय करनी थी, वो भी अपने घर से बाहर निकलकर. आंसर. The words and phrases that indicate the mole's desire to be out in the fresh spring air are A. Sunlight and warm grass. B. He suddenly flung down his brush on the floor. C. Something up above was calling him. यानी वो वर्ड्स और फ्रेजेस जो इशारा कर रहे हैं मोल की ख्वाहिश को कि वो बाहर क्यों निकलना चाहता था फ्रेश स्प्रिंग एयर को एंजॉय करने के लिए. A. Sunlight and warm grass. मोल को सनलाइट बहुत अच्छी लगती थी. हमने डिस्कस किया था कि उसे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी वजह से उसको वार्म ग्रास भी पसंद थी. B. He suddenly flung down his brush on the floor. यानी जिस ब्रश से वो सफाई कर रहा था फ्लोर की, वो भी उसने उठा के एकदम फेंक दिया था. क्यों? क्योंकि उससे अब और काम नहीं हो रहा था. वो चाह रहा था कि बस अब मैं जो है अपने घर से बाहर निकलूं और स्प्रिंग की एयर को एंजॉय कर सकूं. C. Something up above was calling him. यानी उसे ऐसा लगता था कि ऊपर उसे कोई बुला रहा था, इसलिए उसे अपने घर से बाहर निकलकर इस स्प्रिंग की एयर को एंजॉय करना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब हाउ द रैबिट्स रिएक्टेड व्हेन द मोल पास्ड बाय द प्राइवेट रोड. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब मोल ने प्राइवेट रोड को पास कर दिया तो रैबिट्स ने कैसे रिएक्ट किया. आंसर. द रैबिट्स रिएक्टेड बाय grumbling at each other after the mole passed by the private road. Without paying sixpence, they were frustrated and blamed each other for not stopping him earlier. Grumble का मतलब क्या था? बड़बड़ाना. तो रैबिट्स ने कैसे रिएक्ट किया? वो आपस में बड़बड़ाना शुरू हो गए क्योंकि मोल जो है बिना पैसे दिए यानी बिना सिक्सपेंस दिए रोड को, प्राइवेट रोड को पास करके चला गया. और जो रैबिट्स थे वो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने इसको पहले क्यों नहीं रोका.
Question number 3. What seemed more attractive than spring to the mole and what was so good about it? अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मोल को स्प्रिंग से ज़्यादा क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, अट्रैक्ट कर गई थी उसको। जैसा कि आप सबको याद होगा कि मोल सर्दियों को बहुत ज़्यादा नापसंद करता था। उसको कौन सा सीज़न पसंद था? उसको स्प्रिंग पसंद था। और उसने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जो है कहाँ गुजारी थी? अपने घर में ही गुजारी थी। तो उसको इतना आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका आंसर है द रिवर एंड द बोट बोथ अट्रैक्टेड द मोल more than spring. The river glints and sparkles bewitched him while the idea of being in a real boat filled him with excitement and delight. The river and the boat यानी दरिया और जो कश्ती थी दोनों भी उसको अट्रैक्ट कर गई थी स्प्रिंग से ज़्यादा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करी थी जो कि उसको स्प्रिंग से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगी थी। The river glints and sparkles bewitched him यानी जो चमकता हुआ पानी था, दरिया था, विवेच यानी उसके ऊपर बिल्कुल जादू सा असर कर गया था। मतलब वो दरिया उसको इतना हसीन और इतना खूबसूरत लगा था। और जब वो सोचता था कि मैं एक रियल बोट के अंदर बैठा हूँ ज़िंदगी में पहली बार, तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। Question number 4, last question. Do you agree that the water rat thoroughly enjoys his life on the boat on a river? Give reasons for your answer. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अग्री करते हैं कि जो वाटर रैट था वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर कश्ती में दरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था? अगर करता था तो आपने उसका रीज़न लिखना है अपने आंसर में। आंसर: यस, द वाटर रैट thoroughly enjoys life on the boat because he loves boating, prepares picnics for their trip and finds happiness being on the river. अब आपको याद होगा कि जो मोल का जो न्यू फ्रेंड बना था वो कौन था? वाटर रैट था। आप लोग को याद होगा कि वाटर रैट ने मोल को क्या बताया था? उसे जो है पिकनिक्स पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे बोटिंग अच्छी लगती है, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी रिवर के ऊपर बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाकी जो वाटर रैट है अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय करता था कश्ती में पानी के ऊपर। Now we have reference to context. Read these lines from the story and then answer the questions. यानी हमें हमारे चैप्टर में से एक लाइन गिवन है, अब हमें उसको पढ़ के जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस हैं उसे हमें आंसर करना है। हमारे पास लाइन क्या गिवन है? As he sat on the grass and looked across the river, a dark hole in the bank opposite, just above the water's edge, caught his eye. इसका मतलब है जैसे ही वो घास पर बैठा और दरिया के उसने अपोजिट देखा तो उसे एक डार्क होल नजर आया। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? Who is sitting on the grass and what was the dark hole that he saw? वो कौन था जो घास के ऊपर बैठा था और डार्क होल एग्जैक्टली क्या था जो कि उसने देखा था? आंसर: घास के ऊपर कौन बैठा था? मोल बैठा हुआ था। और जो डार्क होल था वो क्या था? वो वाटर रैट का होम था, यानी उसका घर था। क्वेश्चन नंबर 2, What does he see in the hole at first? यानी जब उसने होल की तरफ देखा तो उसने उसके अंदर सबसे पहले क्या देखा? आंसर: Something twinkled like a tiny star and he soon discovers it to be the water rat. यानी उसने देखा कि एक छोटा सा सितारे की तरह कोई चीज चमक रही है और फिर जल्दी उसको पता चला कि ये एक वाटर रैट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आरटीसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। Now what sentences? Make sentences of the following words. Word number 1, thoroughly satisfactory. Thoroughly satisfactory का मीनिंग क्या है? यानी मुकम्मल तौर पर मुतमईन होना। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? The test results were thoroughly satisfactory. She smiled with relief. Word number 2, rambled busily. इसका मतलब है कि मसरूफियत के साथ इधर उधर घूमना। सेंटेंस क्या बनेगा? The children rambled busily around the playground. Word number 3, meandered aimlessly. यानी बगैर किसी मकसद के घूमना। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? The dog meandered aimlessly around the park, sniffing at everything. Word number 4, unlikely situation. यानी ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल
जिसकी हम उम्मीद ना कर रहे हो यानी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो. सेंटेंस क्या बनेगा? शी वॉज इन अनलाइकली सिचुएशन बट शी समहाउ मैनेज इट. आवर फिफ्थ वर्ड इज रैप्चर. रैप्चर का मीनिंग क्या है? बेहद खुशी होना. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? शी एक्सपीरियंस्ड अ रैप्चर ऑफ जॉय व्हेन शी फाउंड हर लॉस्ट नेकलेस. Now we have filling the blanks. Number 1. The mole had been working very hard to spring dash his little home. यानी जो मोल था वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था और वो अपने छोटे से घर की क्या कर रहा था? Spring cleaning. Number 2. The mole found himself rolling in warm grass of a great dash. यानी जब वो अपने घर से बाहर निकला, उसका घर कहाँ होता है? ग्राउंड में. जब वो ग्राउंड से बाहर निकला तो उसने अपने आप को किस हालत में पाया? रोलिंग इन वार्म ग्रास ऑफ अ ग्रेट मीडो. अब मीडो आपको याद होगा कि मीडो क्या है? घास का एक मैदान होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडो. Number 3. The rabbits grumbled at each other after the mole passed by the dash road. ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर में भी है. तो मोल कहाँ से गुजरा था? एक प्राइवेट रोड से. इसी की वजह से जो रैबिट्स से आपस में बड़बड़ाना शुरू हो गए थे. Number 4. The water rat invited the mole to come over to his side of the river and join him in the dash. वाटर रैट ने क्या किया? जब मोल दरिया के किनारे वाटर रैट के अपोजिट खड़ा था तो उसने उसको इनवाइट किया कि आओ तुम भी मेरे साथ बोट में ज्वाइन करो मुझे. Number 5. The water rat prepared a picnic basket for their boat excursion. यानी जब वाटर रैट बाहर निकलता था और बोट में बैठता था तो वो क्या करता था? एक पिकनिक वाली बास्केट अपने साथ जरूर प्रिपेयर करता था और रखता था. Our last exercise, jumble words. इसमें आप लोगों ने क्या करना है? बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज होती है ये. आपके पास लेटर्स गिवन होंगे जो कि आगे पीछे हुए हुए हैं. अब आपने क्या करना है कि आपने अपना ब्रेन यूज करना है और आपने पता लगाना है कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है. नंबर 1 पे हमारे पास क्या बन रहा है? क्यूरियोसिटी. नंबर 2 पर bewitched. नंबर 3 पर river. नंबर 4 पर trotted. नंबर 5 पर rabbit. Okay students, our chapter ends here. I hope you understood the revision of today's chapter and you all should also work hard to revise on your own. I request you all to keep revising as exams are near. Take care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.